Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma. Prelims 2025 is finally over, done and dusted. And I would say that this year, yes, question paper was again a challenge. हर साल क्वेश्चन पेपर टफ ही होता है, बट ऐसा नहीं बोलूंगी कि इस बार स्लाइटली इजी था, नहीं. इट वॉज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन पेपर दिस ईयर. वाई? फर्स्ट रीजन इज it was loaded with current affairs and previous year questions. Second reason is new pattern of question finally has been introduced again by UPSC. I'll show you what new pattern has been unlocked by UPSC. And third reason is that this year UPSC has proved again that rote learning is not going to work in this exam. This is a factual and concept oriented exam where in depth preparation is required. UPSC ने एक लेवल सेट कर दिया है अब, जहां पर रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, ये सारी चीजें अब बैक सीट ले रही हैं. अगेन एलिमिनेशन मेथड वाज रिमूव्ड, नहीं यूज कर सकते एलिमिनेशन मेथड मेजॉरिटी क्वेश्चंस में. And this year, UPSC has proved that even in previous year questions, when you practice them in your preparation, you have to make sure that आपकी practice shallow नहीं है. Shallow मतलब सिर्फ options देखा याद कर लिया, नहीं. Even in those options, you have to go deeply. You have to study conceptually. Now, this session will be taken by me, your mentor, and Vimal sir, again your mentor. He will be dealing with environment, ecology, and science and technology related questions, and I am going to solve the all the other subjects. हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे लाइव. आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट आंसर की पीडीएफ. द लिंक इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लस देर इज ऑल्सो अ सरप्राइज that there is a predictor tool also that we have made, जहां पर आप अपना स्कोर डालकर, after verifying your scores with the answer key, then you can put your score in there and you can get a kind of prediction कि आप कट ऑफ में कितना ऊपर नीचे हो. ठीक है. अब now let's start this session without any delay, but make sure that you have your question paper in your hand. आप साथ साथ एक पेन लेकर बैठो, क्वेश्चन पेपर लेकर बैठो and try to understand. And if you are preparing for 2026 or 27, then keep your register with you. Register ले लो, because a lot of new patterns have unlocked this year, जो आपको समझना आपके लिए तो बहुत important है. Let's get started everyone. Let's start with the analysis everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी शोइंग यू साइमल्टेनियसली द क्वेश्चन पेपर. मैंने क्वेश्चन पेपर में ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट, फ्रॉम विच बुक द क्वेश्चन हैज बीन टेकन, विच एनसीईआरटी, विच तमिलनाडु बेस्ड बुक, विच पीवाईक्यू द क्वेश्चन इज रेफरिंग टू. ये सारी चीज़ें डायरेक्ट करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत बुक से कितने क्वेश्चन हैं, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया एंड आई विल बी शोइंग इट साइमल्टेनियसली. Now, before we start this session, let us have a look at the number of questions asked from different subjects. In 2024, majority questions, approximately 19 questions were asked from polity. ये बात है हमारी 2024 के क्वेश्चन पेपर की. बट इफ वी लुक एट दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पॉलिटी से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आए हैं एज इन कंपैरिजन विद 2024. ओनली 14 क्वेश्चंस दिस ईयर हैव बीन आस्क्ड. From economy, highest number of questions this year have been from economy. Why? देखो, that because new schemes have been announced. budget अभी आया था तो नई schemes भी आई हैं. plus this time ना in the budget there was key focus on already implemented schemes. हमें whenever we are analyzing budget, we revised budget very nicely. So whenever we are analyzing the budget, we have to make sure that we are focusing on how our already implemented schemes are performing. तो यहाँ पर आई शो यू वाई आई एम सेइंग इट. जब हम इकोनॉमी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे ही. एंड वी आर गोइंग टू रफली सॉल्व द कोर टॉपिक्स. ओके, हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, रफली कोर टॉपिक सॉल्व करेंगे एंड द इंटायर आंसर की इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड द आंसर की पीडीएफ. Then from science and tech 13 questions. Last year questions were less in science and tech. इस साल काफी questions पूछे गए हैं. Last year from modern history questions were less. This time 8 questions have been asked. लास्ट ईयर आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन थे, इस साल 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इंडियन ज्योग्राफी से ओनली 1 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. आईआर से क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इंक्रीजिंगली वेल. वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चंस आए हैं. एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीजिंगली आस्क्ड. सो वी कैन सी द शिफ्ट इन डायनामिक्स बिटवीन द सब्जेक्ट. इकोनॉमी एनवायरमेंट एट टॉप, थर्ड पे पॉलिटी आ गया है. लास्ट ईयर उल्टा था. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So we'll be starting with history today. मतलब we'll be covering all the subjects, but first we are starting with history because in history I told you that PYQs have been increasingly heavily asked.
नाउ व्हेन वी लुक एट दिस क्वेश्चन, अब आप देखोगे अगर हम इसका लेवल देखें इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन? द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इजी. व्हाई आई सेइंग इजी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जाम में बैठकर इजी लगेगा सब कुछ. एग्जाम में तो ऑब्वियसली वी आर अंडर प्रेशर, सो एवरीथिंग seems tough, right? But specifically this question is easy because this is direct question asked from NCERT, from our spectrum book. Raja Ram Mohan Roy के ऊपर question है. We revised Raja Ram Mohan Roy in our marathon session or modern history, right? तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट, ही possessed great love and respect for traditional philosophical systems of the east, which is right. Why? Because Vedanta में उनकी रुचि थी. He was very influenced, he was very engrossed in studying the Vedanta. Second, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach, which is again right because उनको जो approach था वो हमेशा rational रहा करता था. He always used to say apply logic before you believe in something, right? So pattern is same. Which of the statements given above is or are correct? Pattern same है. Question is very direct. Type of question अगर हम देखें तो बिल्कुल ही डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम इफ यू आर स्टडिंग इट. देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक और दैट बुक, बट बेसिक जो किताबें हैं उनमें से कितने डायरेक्ट हिट्स आए हैं वो आपको पता होना चाहिए. सो इफ यू हैव बीन स्टडिंग स्पेक्ट्रम and if you are preparing for 2026, spectrum is your go to book. I'll show you many other questions directly coming from spectrum modern history. Okay, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड ओवर हियर. सी बोथ 1 and 2. एंड इसमें कोई पैटर्न चीज नहीं है, कुछ नहीं है, लेवल इजी है क्वेश्चन का. मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं. नाउ लुक एट दीज टू क्वेश्चंस. ये दो क्वेश्चंस देखने हैं आपको. दिस ईयर दीज टू क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Look at this particular question. This was asked in 2016 prelims. 2016 का prelims है. Now question is not same. ये दो questions और इस question में कोई direct linkage नहीं है. But you will see, look at the options. Home rule movement, partition of Bengal, non-cooperation movement. So this is what I meant in the beginning of this session. When you are solving previous year question paper, do not solve like this ki what is the correct answer of this question, I will memorize it. No. स्टडी ईच एंड एवरी ऑप्शन सेपरेटली, इंडिविजुअली. होम रूल मूवमेंट के ऊपर नोट बनाओ. मेक शॉर्ट नोट्स ऑन होम रूल मूवमेंट, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन साइमन कमीशन, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. कि देखो 4 नंबर डायरेक्टली इसी टॉपिक से आ गया. एंड दिस हैपेंस वेरी रेयरली कि एक ही टॉपिक से 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं. अगेन दिस वाज इजी. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिक स्पेक्ट्रम बुक है. And many students who approached us later on after giving the exam, they told us कि modern history comparatively ठीक था, जो पढ़ा था वहीं से ही पूछा गया है. We study non-cooperation movement in NCERTs, we study non-cooperation movement in spectrum, direct वहीं से आया है. Question says, consider the following statements in respect of non-cooperation movement. Congress declared attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to its objective. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of tax for next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. यहाँ पर अगर आप देखोगे how statement has been framed. Statement has been taken out word by word from the book itself. ये rarely होता है. This is newness this year that we can see in the question paper. ये newness है जो आप देख सकते हो कि statement word by word उठाई जा रही है, sentence by sentence. Now they are not twisting and turning. That means whenever you are reading your books, बेसिक लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम बुक और कोई भी बेसिक बुक आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड, समझना है आपको. यू डोंट हैव टू क्रैम इट. ऑलराइट, सो ओवर हियर नोटिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना. कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम. बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ, ये तो हुआ था नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में, दैट वी आर नॉट कोऑपरेटिंग. ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, retention of titles and honors without using them in public, establishment of panchayats for settling disputes. अब यहाँ question again same pattern UPSC has used, which it has been using since the last 2-3 years. How many of the above parts is or are correct? But इसमें ना एक बहुत interesting, मतलब direct solvable question है. Third statement देखो, retention of titles and honors. You are not using them in public, but you are retaining it. No, many leaders left out their titles and honors. Retention नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गया. ठीक है, I've marked the correct answers also, plus it is also available in the answer key PDF which is shared in the description box. But read the statement carefully.
यहाँ पर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, मेनी स्टूडेंट्स टोल्ड अस दैट दे मार्क्ड इट इनकरेक्टली बिकॉज यहाँ पर लिखा था विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक. नो, इट वाज नॉट रिटेंशन. देन लुक एट 30th क्वेश्चन जो सेम टॉपिक के ऊपर था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ने हैं आपको. Congress declared attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means. Yes, legitimate word, ये दो words हैं यहाँ पर. स्टूडेंट जिसका पेपर है ना उसने भी यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं ये दो वर्ड्स. राइट, दैट मीन्स द स्टूडेंट रेड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, जिसका भी क्वेश्चन पेपर हमें मिला. राइट, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. Look at this question directly asked from 2016 अरा घाटा 2016 के प्रीलिम्स में. पर्शियन वाटर व्हील है. इट इज अ काइंड ऑफ अ पर्शियन वाटर व्हील वेयर बास्केट्स आर अटैच्ड एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग बीनीथ इट. यहाँ पर एक टनल होता है. द व्हील रोटेट्स एंड द वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द buckets एंड देन इट फ्लोज इन टू द फील्ड. इरिगेशन के लिए यूज होता है. राइट, so again it is a large wheel with earthen pots tied to the ends of the spokes. जो भी wheel में पहिए होते हैं ना, spokes होते हैं, उनमें इसको अटका दिया जाता है. And then it revolves and collects the water and then it gets to the field. But look at the statements. earthen pot देखकर ना काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे. लार्जर earthen pot driven by bullocks, no, wrong. मतलब दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अंदर तो कुछ कहना ही नहीं है. यू हैव सॉल्व्ड लास्ट 10 years 11 years PYQs, आप बहुत इजीली यू कैन सॉल्व दिस वन. ओके, तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था, नो इश्यूज. आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक दो ऐसे बाउंसर क्वेश्चन हर साल आते हैं. अ पर्टिकुलर किंग एंड द टाइटल दैट ही अज्यूम्ड. Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Mata Vilasa, Vichitra Chitta, Guna Bhara? डायरेक्ट आंसर तो हमको पता है, बट फ्रॉम विच डायनेस्टी दिस पर्टिकुलर किंग बिलोंग टू, ये जरूरी है जानना. अब महेंद्र वर्मन, वी ऑल नो दैट वेरी फेमस पल्लवा रूलर, काफी फेमस पल्लवा रूलर है महेंद्र वर्मन वन. राइट, तो वेन एवर यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, मेक श्योर चोला एम्पायर, द पल्लवाज, द पांड्याज, राइट, देन वी हैव विजयनगर एम्पायर. मतलब दीज आर की एम्पायर्स, ये तो पढ़ के ही जाना है. यू कैन नॉट इग्नोर देम एट एनी कॉस्ट. ये एम्पायर्स तो यू हैव टू प्रिपेयर. One or two questions from the famous kings of these empires and the titles that those kings had can easily be asked. अब यहाँ पर here you have to make sure that you are revising multiple times. अगर आप बोलो ना मैम याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा when you are covering the Tamil Nadu state board books, history की, ancient history की, 11th 12th medieval history की, right? And when you are revising it on a daily basis, because without revision it is not very easy to solve these kind of questions. Okay, revision is must in history specifically. And it was evident कि भाई इन rulers, इन empires के rulers से question तो आएगा ही आएगा. Moving ahead, अगेन यूपीएससीज फेमस फॉरेन ट्रैवलर्स, तो ये तो हमें रिवाइज करना ही होता है हर साल. दिस ईयर ऑल्सो वी रिवाइज्ड इट इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री, फॉरेन ट्रैवलर्स. प्लस इफ यू नोटिस लास्ट ईयर ना, लास्ट टू लास्ट ईयर इन 69th बीपीएससी पेपर 2023 the question on fine was asked. So whenever I am making students revise PYQs, I also pick up questions from BPSC paper, from CAPF, CDS, because आजकल ना थोड़ा kind of type of questions which they are asking, the topics they are becoming similar. So here फाहाइन, चाइनीज पिलग्रम, फाहाइन के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं. प्लस इट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटीज. तो दिस इज नॉट समथिंग जो बाहर से कोई क्वेश्चन बनकर आ गया जो आपके लिए बाउंसर था. इट वाज नॉट अ बाउंसर क्वेश्चन, इट वाज एक्सपेक्टेड. वन क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेन ट्रेवलर्स एवरी ईयर इज आस्क्ड, दिस वाज आल्सो एक्सपेक्टेड. एंड फाहाइन तो यूपीएससी के टॉप लिस्ट में रहता है. इट इज ऑलवेज ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ यूपीएससी. ओके, चंद्रगुप्त टू के पीरियड में ही वॉज ट्रैवलिंग टू इंडिया, ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम. 6th एनसीईआरटी आपको पता ही है, कवर करनी है. Moving ahead, now I have shown you the kind of questions. अभी तक मैं आपको वो questions दिखा रही हूँ. I'm not saying that complete paper was direct and easy like this. नहीं, these are few questions from modern history this year which have been directly asked from books and PYQs which I'm showing you. अभी तो complex questions भी आएंगे, don't worry. Okay, look at this question. Now this is the complex question that I was talking about. ये question directly उठाया गया है current affairs से. This is the one, current affairs. Now you must be wondering, अरे in history current affairs? Yes, in 2024 there was a port which was named Port Blair. It was renamed to Shri Vijayapuram. और जिन्होंने भी, the students who studied that news, they must have studied about Shri Vijaya.
श्री विजया बेसिकली सी, जब हम बात करते हैं श्री विजय की, एक बहुत पावरफुल किंगडम रहा है ये, मैरीटाइम स्टेट रहा है, वेरी पावरफुल मैरीटाइम स्टेट. ओके, so question was, who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands? Correct answer तो आपको पता ही चल गया. I have marked it. But the point is, how is it connected? कैसे connected है current affairs से? This is how it is connected. Any port which is renamed, any birth anniversary, death anniversary of any king or any historical person which is in news, you have to study it. और ये तो डायरेक्टली आपके हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में ही था, पीआईबी तक में था. बिकॉज अ पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड ना, इट इज अ बिग न्यूज. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ दिस इज हाउ बेसिकली चोला एम्पायर, वही मैंने आपको बताया कि इवन इफ यू आर स्टडिंग चोला एम्पायर, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, एंड इवन इफ यू मिस्ड इट, करंट अफेयर्स ने तो छोड़ा ही नहीं है. दिस इज हाउ करंट अफेयर्स आर इंटरलिंक्ड विद हिस्ट्री. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, नाउ दिस वॉज टफ. अब मैं ये बोलूंगी ये बाउंसर क्वेश्चन था. आई विल ऑल्सो क्रिएट अ बॉक्स ओवर हियर टू राइट डाउन, दिस वॉज अ बाउंसर क्वेश्चन. बाउंसर क्वेश्चन. ओके, ये था बाउंसर. नाउ हियर आई कैन से कि आप स्किप कर सकते थे इस क्वेश्चन को. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एनी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, नाउ तो यू आर प्रिपेयर्ड कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. बट अगर ऐसा बाउंसर क्वेश्चन आया तो सेफ प्ले करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर. यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, राइट. सो विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, आप देखो 600 to 322 BC का टाइम पीरियड दे दिया. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर दैट टाइम पीरियड. Consider the following pairs: territorial region, river flowing in the region. But again, if you have prepared famous kingdoms like Avanti, Koshal, Kamboj, then you can still answer the question. अगर आपने medieval history में, ancient history में ये kingdoms अच्छे से prepare किए हैं. अस्माका, गोदावरी करेक्ट. कंबोज, विपास ये गलत है, बिकॉज विपास रिवर बेसिकली पंजाब रीजन में देखी जाती है. अवंती, महानदी, महानदी की जगह अवंती में, महानदी नदी इज ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ के आसपास. सो अवंती में नर्मदा रिवर इज प्रोमिनेंट रिवर विच इज फ्लोइंग देयर. देन कोशल, कोशल में सरयू रिवर हो जाती है, विच इज करेक्ट. सो हियर हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट? अब हाउ मेनी पूछा गया है तो ओनली 2 आर करेक्ट. ओके, बट दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन. आई मार्क्ड इट डाउन ओवर हियर. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बाउंसर था. आप इसको आराम से स्किप कर सकते थे. यू कुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन. बट अगेन, अगर कोशल और अवंती एम्पायर के बारे में पढ़ा है, नियर बाय रिवर्स थ्रू मैप, द हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट कुड हैव मार्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल में रीजन्स एंड रिवर्स काफी अच्छे से प्रिपेयर किए होते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बाउंसर क्वेश्चन. यहाँ पर देखो, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर. येस, इट इज़ अ बाउंसर क्वेश्चन, क्योंकि आपको नेचुरली ये क्वेश्चंस देखने को, ये टॉपिक्स देखने को नहीं मिलते इन योर स्टैंडर्ड बुक्स और इन योर एनसीईआरटी और इवन इन योर करंट अफेयर्स. तो 28th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इट इज लाहौर. डी इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा विष्णु दिगंबर पालुस्कर के बारे में समझना यहाँ पर जरूरी है. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट विष्णु दिगंबर पालुस्कर, आई यूज अनदर इंक फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर देखो, ही वॉज बोर्न इन टू अ फैमिली ऑफ कीर्तनकार्स. तो राइट इट डाउन. कीर्तनकार्स, कीर्तनकार्स मीन्स म्यूजिकल रिलीजियस फॉर्म के प्रैक्टिशनर्स होते हैं. दे आर अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल रिलीजियस फॉर्म प्रैक्टिशनर्स. सो कीर्तन करते हैं, राइट. सो कीर्तनकार्स की फैमिली में इनका जन्म होता है. एंड ही, बिकॉज नेचुरली ही वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक, सो वी विल राइट इंक्लाइंड towards music. Okay, and at a very young age he started accompanying his father in different kirtans. He was a practitioner of Hindustani classical music. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट विष्णु दिगंबर पालुस्कर दैट यू शुड रिमेंबर. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. एंड आई हैव बीन मार्किंग ऑल द क्वेश्चंस विद ग्रीन इंक, तो आई होप ये विजिबल है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 91. मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बेसिकली हम सारे कर रहे हैं कवर. Now this is a very unique question. काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है. एंड वी कैन से दैट इट वॉज ईजी वन एज वेल. मैंने बताया ना, हिस्ट्री जो था हमारा थोड़ा सा ईजी साइड पे था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू PYQs दिस टाइम इन हिस्ट्री. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टॉपिक्स. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of, ये तो मैं आंख बंद करके सॉल्व कर सकती हूँ, publicly violating the salt law at Dandi. Now why this question is, this particular option is correct? ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है? बी ऑप्शन. देखो 6 अप्रैल की बात है. अच्छा ऐसा करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर.
It is a matter of 6th April. What happened on 6th April? On 6th April, गांधी जी he reached Dandi, okay, and इन्होंने वहां पर डिक्लेयर किया कि the British rule, मतलब obviously he was protesting against the British rule. He said that the British rule has brought about moral, material, cultural, and even spiritual ruination of this great country. हर तरीके से खत्म करने की कोशिश की है ब्रिटिशर्स ने, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, मॉरली हो, मटीरियली हो, एटसेट्रा. And he said, sedition has become my religion now. Ours is a non-violent battle. We are not here to kill anyone, but it is our dharma. ये हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म है टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट. ये जो श्राप लगा है ना इस कंट्री को ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम का, इसको हटाना ये हमारा धर्म है. तो उन्होंने पब्लिकली फिर सॉल्ट लॉ को वायोलेट किया. तो दिस वॉज द आंसर. बहुत ही डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें तो आप आंख बंद करके भी यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. इंडस वैली सिविलाइजेशन, फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड अप ऑफ. आप देख रहे हो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन यूपीएससी नाउ इन हिस्ट्री. मतलब आई वाज शॉक्ड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ये तो आंख बंद करके मैं ब्रोंज पे टिक करूंगी, है ना. तो ये तो हम सबको पता है, ब्रोंज स्कल्पचर था मोहनजोदारो, 10.5 सेंटीमीटर्स के हाइट का था और अप्रॉक्सीमेटली 4.1 इंचेस के अराउंड आता है. डांसिंग गर्ल का स्ट्रक्चर आपने देखा ही है, स्कल्पचर हाथ कमर पे हाथ रखकर एक ओडिसी डांस फॉर्म के पोस्चर में खड़ी है डांसिंग गर्ल विद ऑल द बैंगल्स इन हर हैंड एटसेट्रा, राइट. सो अगेन इजी क्वेश्चन. अब देखो ये तो इजी हो गए अपने. दिस वाज फ्री के 4 मार्क्स, फ्री के 4 नंबर मिल गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना. द क्वेश्चन सेज, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स Gandhiji, who consistently opposed untouchability and he appealed for eradication of untouchability from all these spheres, decided to include upliftment of Harijans. ये तो हमको पता है, वो हरिजन्स बोलते थे, हरि के जन हैं, राइट. इसलिए अनटचेबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए, यूज टू अपोज अनटचेबिलिटी. बट दिस वॉज डन व्हेन पूना पैक्ट, गांधी अर्विन अग्रीमेंट, दिल्ली पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, promulgation of Government of India Act 1935. करेक्ट आंसर पूना पैक्ट. 1932 का पीरियड है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग भूल ना जाओ. 1932. डोंट वरी इफ यू आर थिंकिंग कि हमें पीडीएफ मिल जाए आंसर कीज का, तो डोंट वरी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ. सेट बी वी आर सॉल्विंग सेट बी. तो सेट बी का पूरा एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर. इवन इफ यू हैड सेट ए और सेट बी, क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड यू कैन अगेन सेव इट एंड रिवाइज थ्रू इट. So this happened. Pune Pact was signed in 1932. Between which two personalities? Between Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar. This was signed following the British government's communal award, if you guys remember. है ना, communal award में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, है ना. तो वहां पर गांधी जी ने स्ट्रांगली ओपोज किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अनटचेबल्स के लिए, ठीक है. ही फियर दैट इट इज गोइंग टू डिवाइड द हिंदू सोसाइटी, तो इट्स नॉट राइट. ओके, उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ भी लिया था उस टाइम पर. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पूना पैक्ट. उन्होंने काफी एफर्ट्स डाले थे सो दैट हरिजन्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, कैन ऑल्सो इट बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल स्फीयर. ऑल राइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अगेन ये इजी क्वेश्चन था. इफ वी हैव स्टडीड पूना पैक्ट वी कैन आंसर दिस. पूना पैक्ट तो इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम में पूना पैक्ट तो रिवाइज करते हो आप लोग, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93. क्वेश्चन 93 क्या बोल रहा है? It is about who provided legal defense to the people arrested in aftermath of Chauri Chaura incident. 2 plus 2 plus 2 plus 2. 8 नंबर आ गए फ्री के. फ्री के 8 नंबर है ये. एंड यू विल अग्री विद मी, आई नो इट. चौरी चौरा इंसिडेंट, चंपारण सत्याग्रह, सॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पब्लिकली वायोलेटिंग द सॉल्ट लॉ, पूना पैक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो बेसिक हिस्ट्री के हम पढ़ते ही हैं, राइट. तो खुशी हो रही है ना सॉल्व करते वक्त, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इजी पार्ट उठाया कि थोड़ा सा आपको, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 यू शुड फील कि हिस्ट्री में ये की टॉपिक्स है और इसको अच्छे से पढ़ो तो वी कैन सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बी है, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत. दिस इज इंपॉर्टेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है? February 1922 में होता है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, दे वर पुट ऑन ट्रायल, वायलेंट हो गया था इंसिडेंट. तो एट दैट टाइम पंडित मदन मोहन मालवीय ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंडिंग दोज हु वर अक्यूज्ड. ही अलॉन्ग विथ कृष्णकांत, राइट. कौन थे कृष्णकांत? इन्हीं के बेटे थे. ही वॉज द सन ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय.
एंड दे डिफेंडेड देम, ये लॉयर्स थे उनके, ठीक है। तो 172 पीपल वर सेंटेंस टू डेथ उस टाइम पर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स कि ये जो out of 172 people only 19 were termed to death, बाकी को बचा लिया गया था। सो दिस वाज द इंटायर इंसिडेंट, दिस वाज द इंटायर केस। तो ये तो मेरे 8 नंबर यहाँ पर मैंने ले लिए, ठीक है। हिस्ट्री हमने अच्छे से समझ ली, बाकी डिटेल में यू विल गेट द एनालिसिस पीडीएफ, तो डिटेल में यू कैन अंडरस्टैंड, बट माय हियर रोल इज टू मेक यू अवेयर हाउ द टॉपिक्स दैट यू आर स्टडिंग, हाउ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देम। सॉल्ट लॉ का वायोलेशन पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्ट क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड, दे कैन आस्क क्वेश्चन कि गांधी जी ने स्टेटमेंट पास की थी किस इवेंट के दौरान, ड्यूरिंग विच इवेंट द स्टेटमेंट वाज पास। दिस इज द वे यूपीएससी थिंक्स, ओके। एंड इवन यूपीएससी कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे भी मत सोचना अरे हमारे साथ तो गलत ही होता है, हमसे तो हमेशा टफ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी वाले भी आ ही जाते हैं, ओके। लेट्स मूव अहेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इकोनॉमी। देखो, this purpose of this session is for you to understand कि what is the level of questions which are being asked. We have practiced PYQs, आप सबने PYQs पढ़ेंगे, even if you're preparing for 2026 you must be going through the previous year questions, but every year we come across a certain surprise by UPSC, and that surprise is in terms of level of questions. Were it simple, were it बाउंसर क्वेश्चंस जो कि हमने हिस्ट्री में भी देखे, वर इट मोर करंट अफेयर ओरिएंटेड। एंड इकोनॉमी में ना मतलब इट वाज टफ, इट वाज नॉट वेरी इजी, इकोनॉमी सेक्शन वाज नॉट वेरी इजी, बट इट वाज if easy for them, not easy but yes doable for them, 70% tough था ये इकोनॉमी का सेक्शन, but it was doable for them who had revised budget multiple times, and I have proof of it। ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ के, आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुला है, so without proof तो we'll not talk। Look at this particular question, question number 31. We are using set B. It was in budget 2025 with reference to investments. Consider the following. देखकर tough लगता है, अरे alternative investment fund, but this term was there in the budget when we studied budget. Bonds, hedge funds, stocks, venture capital. Hedge funds news में रहते हैं. So if you study news, if you are consistent in newspaper reading, then आपको hedge funds की understanding होगी. What is hedge funds? They are type of alternative investment funds, and in India, SEBI classifies hedge funds into category 3 of AIF, AIIF. Okay. तो यहाँ पर आप देखोगे कि hedge funds, that is correct, ये AIIF में का पार्ट रहता है, ठीक है, सॉरी AIF का पार्ट रहता है. Then when we look at bonds, no, bonds are not a part of alternative investment fund. Why? Because these are traditional investment instruments. इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ते हैं, उसमें उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं इन इंडिया. सो हियर बॉन्ड्स आर ट्रेडिशनल, राइट? तो दे आर नॉट क्लासिफाइड एज AIF, दे आर कंसिडर्ड कन्वेंशनल डेट सिक्योरिटीज. तो ये हो जाता है हमारा कन्वेंशनल डेट सिक्योरिटीज. अभी ना इंडिविजुअली भी ऑन different subjects we'll make classes, don't worry. Abhi to I am giving you an overview in this session, but individually on each and every topic, each and every subject and the core topics in that subject we'll study it. छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है? For those who are preparing for 2026 or 27, we are not going to leave you अभी, पढ़ना है इसको और डिटेल में. So here bonds गलत हो गया, bonds को हटा दो. If bonds is wrong, hedge funds हो गया, ठीक है? तो only one वाला ऑप्शन तो अभी हमारे पास नहीं है. स्टॉक्स देखते हैं. अगेन स्टॉक्स इज रॉन्ग, ओके, नो, स्टॉक्स आपका AIF का पार्ट नहीं है, इक्विटी शेयर्स हो गया ना ये. दे आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये अगेन डेट इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं कंपनीज में, दैट इज इक्विटी, आपका स्टॉक्स हो गया. वेंचर कैपिटल, यस करेक्ट, वेंचर कैपिटल तो न्यूज में काफी है इस बार, राइट? वाई वेंचर कैपिटल इज करेक्ट? बिकॉज इंडिया में AIF में कैटेगरी 1 में वेंचर कैपिटल को डाला गया है, ओके. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 2. आई हैव मार्क्ड करेक्ट आंसर्स आल्सो, एंड प्लस आपके पास PDF भी आंसर की यू हैव द करेक्ट आंसर्स, बट व्हाई इट इज करेक्ट वो जानना जरूरी है. एंड इट वाज नॉट वेरी इजी, बट इट वाज नॉट आल्सो वेरी टफ अगर आपने हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल टर्म्स को पढ़ा है अच्छे से. एंड एवरी टाइम दे आर इन न्यूज, प्लस बजट में तो थे ही थे, तो इसलिए इट बिकम्स ऑल द मोर इजी फॉर अस टू स्टडी दीज टॉपिक्स. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, इट वॉज बेसिक, आई मार्क्ड इट ओवर हियर. जो टफ है उनको भी मार्क किया है. 70% तो इंडियन इकोनॉमी वॉज टफ, आई विल अग्री विद इट, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? दिखने में बहुत ईजी लग रहा है ना, मतलब व्हेन यू लुक एट इट इट लुक्स वेरी ईजी,
बट नाउ स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट्स, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है. बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 अगेन बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया आपका यहाँ पर. स्टेटमेंट नंबर 3 पेंशन फंड मैनेजमेंट, नो. ठीक है, ये सोर्स थोड़ी होगा इनकम का आरबीआई का. पेंशन फंड मैनेजमेंट इंडिया में इट इज हैंडल्ड बाय स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एटसेट्रा, पीएफआरडीए जिसको हम बोलते हैं. तो ये तो नहीं होगा. लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, नो. ठीक है, देखो आरबीआई ना सेंट्रल बैंक है, तो इट इज नॉट डायरेक्टली लेंडिंग टू प्राइवेट companies. It provides liquidity to commercial banks through different instruments like repo rate, reverse repo rate, etc. जो हम पढ़ते हैं, but not to private companies. तो अपना आपका थर्ड एंड फोर्थ हमने हटा दिया. फिफ्थ, इट इज करेक्ट, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, दैट इज करेक्ट. We know that RBI has the sole authority of issuing the currency in India, except the 1 rupee note which are issued by government of India, that we know, right? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नाउ ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की, राइट, ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक एक करके हम आराम से इकोनॉमी की अलग से सेशन लेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व आराम से. What is the purpose? The purpose is for you to understand the toughness level. Indian economy से questions ज़्यादा पूछे गए हैं. I'll show you. We discussed this in the starting of this session also. कि more questions from economy came this year. 18 questions. And the level of questions were tough. इस बार direct questions जैसे history में अभी we were solving very nicely, very playfully we were solving history and questions directly because history was easy this year. राइट, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमने देखे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, बट इकोनॉमी में डायरेक्ट क्वेश्चंस वर नॉट आस्क्ड, दे वर ट्रिकी. 70% जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, इट वाज अ लिटिल ट्रिकी. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल. लुक एट दिस क्वेश्चन. कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 crores. इट इज रिसीविंग, रुको एक सेकेंड, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस क्वेश्चन ओवर हियर सो दैट मेरा वीडियो भी आपको दिखता रहे और क्वेश्चन भी दिखता रहे. ठीक है, आई विल अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Just give me a second. तो यहाँ पर आप नोटिस करो. Now the question would be visible, right? Question says a country's fiscal deficit stands at rupees 50,000 crores. Okay, and it is receiving 10,000 crores. It is receiving 10,000 crores through the non-debt creating capital receipts. Country's interest liabilities are 1,500 crores. Now question is what is gross primary deficit? ये सारे terms जो हैं ये budget में आप पढ़ते हो. All these terms you study in budget. बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैज बीन आस्क्ड. ऐसे हम क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम कम पढ़ते हैं. व्हेन वी आर स्टडिंग दीज टर्म्स इन बजट, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते नहीं है. वी स्टडी एंड मेमोराइज एंड रेक्टिफाई द डेफिनेशन. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स. फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट पूछा गया है यहाँ पर. ठीक है, दे हैव आस्क्ड फिस्कल डेफिसिट. व्हाट इज इट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट. टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, अब इसमें से क्या एक्सक्लूड करेंगे? बोरोइंग्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया इसमें से. वील एक्सक्लूड द बोरोइंग्स, सो इट विल इंडिकेट टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पर? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, व्हाट आर दीज? ये क्या होती हैं? receipts that do not create any liability for the government and also these receipts reduce the fiscal deficit. कोई liability भी create नहीं करती और fiscal deficit भी reduce कर देती हैं. Then interest liabilities. What are interest liabilities? Payments which are made by the government on its past borrowings. Then next is gross primary deficit. ये क्या होता है? Fiscal deficit में से interest payments निकाल दो तो gross primary deficit आ जाएगा. It will show deficit excluding the interest payment, the burden on the government of interest payment from past debts. So if this data, if we look at particular data, ये जो data हमको दिया हुआ है, अगर हम इसको देखें, so here fiscal deficit is 50,000 crores. Okay, non-debt creating capital receipt 10,000 crores है हमारे पास. But this information is usually accounted for when the fiscal deficit figure is stated. Fiscal deficit क्या होता है? Total expenditure minus revenue receipt plus non-debt creating receipt.
ओके, सो 50,000 करोड़ फिगर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स दीज रिसीट्स। ये जो 50,000 करोड़ की फिगर है ये ऑलरेडी इस रिसीट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इंटरेस्ट लायबिलिटी 1500 करोड़ हो गई। अब यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? इट विल बी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटी, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ओके, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ? 50,000 करोड़, 50 के करोड़ हो गया आपका यहाँ पर, माइनस 1500 करोड़। ओके, दैट वुड बी 48,500 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा? 48,500 करोड़। दैट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए हैं इस बार। दे हैव आस्क्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यू नो द डेफिनेशन, वेरी नाइस। नाउ हाउ कैन यू अप्लाई इट? As I told you, economy हम डिटेल में पढ़ेंगे. We will cover all these important subjects, the questions on all these important subjects in detail in separate classes as well. But we have understood so far that when it comes to, I'll show you the slide. यहाँ पर देखते हैं. When it comes to, we have understood economy 70% very tough. History, modern history, ancient history, art and culture, it was on the easier side. ठीक है, तो ये questions आपके easy side पर थे. Then environment and science and tech, Vimal sir will be taking them. So Vimal sir will tell you about the easiness or the moderate level or the tough level of the questions. Now let's have a look at the geography level of questions. Geography level को देखते हैं. Indian geography से 1 question was asked. Physical geography से we had 7 questions. World geography से we had 5 questions. एंड इसी में हम इंक्लूड करेंगे IR, बिकॉज IR एंड ज्योग्राफी आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द कंट्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन दोज नेशंस, तो सब इंटर रिलेटेड है. तो वील बी कवरिंग IR ऑल्सो. ठीक है, तो हमारा एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा. देन वील बी कवरिंग करंट अफेयर्स एंड सोशल स्कीम्स, एंड दैट विल बी आवर होलिस्टिक एनालिसिस, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग फर्स्ट कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, हाउ क्वेश्चंस वर आस्क्ड एटसेट्रा. So when we look at geography over here, I told you ना IR and geography का interlap हुआ है. It was again on the slightly tougher side. इस साल का पेपर टफ तो था. चैलेंजिंग वर्ड मैं यूज कर रही हूँ इस साल. आई एम यूजिंग द वर्ड चैलेंजिंग दिस ईयर. Consider the following countries: Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. How many of the above are members of NATO? अब ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है. This is not a new question. These kind of questions have been asked by UPSC. ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, तो आप इसमें ये शॉकर क्वेश्चन नहीं है. फॉर मी एज अ स्टूडेंट ऑल्सो दिस विल नॉट बी अ शॉकर क्वेश्चन. यू ऑल नो इट. PYQs उठा के देखो, ऑर्गेनाइजेशंस में कितने मेंबर्स हैं ये पूछा ही जाता है. फॉर एग्जाम्पल सार्क, ब्रिक्स एटसेट्रा. अब इसमें करेक्ट आंसर तो ओनली 4 है, बट लेट अस अंडरस्टैंड विच ऑफ द नेशंस आर अ मेंबर. नाउ केयरफुली लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पर देखते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, Austria. Is Austria a member? Yes or no? No. Austria is not a member of NATO. It has maintained policy of neutrality. ठीक है, since 1955. So it is not a member of NATO. Bulgaria, yes, Bulgaria is a member of NATO. Bulgaria तो है. 2004 में ही तो बना था, right? So again it is a member. Croatia, yes, Croatia is a member. Croatia भी member है. 2009 में बना था भाई, तो Croatia तो है ही. सर्बिया की बात करें, सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव टू स्टडी देम. वर्ल्ड बैंक, WTO, NATO एटसेट्रा, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस तो पढ़ते ही हैं हम, है ना. नाउ नेक्स्ट, सर्बिया. इज सर्बिया मेंबर? नो, सर्बिया इज नॉट अ मेंबर. सर्बिया मेंबर नहीं है इसका. इट ऑल्सो मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ मिलिट्री न्यूट्रलिटी. स्वीडन, क्या स्वीडन मेंबर है? येस, स्वीडन इज अ मेंबर ऑफ नाटो. स्वीडन है मेंबर. कब बना था? 2024 में ही बना है. तो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर, इट वॉज इन न्यूज ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. तभी ये नाटो जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज न्यूज में रहा है. ठीक है, कब बना था? 32nd मेंबर बना था 7 मार्च को. 7 मार्च को इट बिकेम 32nd मेंबर. सो अगेन ये क्वेश्चन डुएबल था. इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन अगर करंट अफेयर सिंसियरली पढ़ रहे हो डेली. ठीक है, सो ऑल द 2026 स्टूडेंट्स, make a note of it please. That is why reading current affair is important. This year's question paper was current affairs heavy. It's a proof in front of your eyes. Even in history current affair से क्वेश्चन आए हैं. पॉलिटी में, इकोनॉमी में देख लो, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. नॉर्थ मैसेडोनिया, yes it is a member. तो कितने हो गए? 1 2 3 4, ओनली 4. नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में बना था. ठीक है, सो अगेन दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी इज आस्किंग नाउ. आप देख रहे हो डायरेक्ट करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. अच्छा, एक और दिखाती हूँ. ओवर हियर, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज. ज्योग्राफी देख रहे हैं ना, जो इंटरमिक्स ऑफ ज्योग्राफी एंड IR.
Consider the following countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, and Venezuela. Andes mountains pass through how many of the above countries? Important mountains, important mountain passes, important rivers, important oceans, important places in news. ये डुएबल क्वेश्चन था, बट इट वॉज थोड़ा सा ट्रिकी ऑल्सो, बिकॉज नॉट एवरी टाइम वी स्टडी एंडीज माउंटेन्स. हम इग्नोर भी कर देते हैं बिकॉज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली एंडीज माउंटेन्स रिलेटेड क्वेश्चन आर आस्क्ड. डुएबल था फॉर दोज हु डिड नॉट मिस इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड पासिस एटसेट्रा, बट ऑन अ ट्रिकियर साइड, क्योंकि रिटेन करना भी एक गेम होता है, राइट? करेक्ट आंसर इज ओनली 4, राइट? बोलिविया, यस, करेक्ट. ब्राजील, नो. ओके, इट इज प्राइमरली, ब्राजील कहाँ लोकेटेड है? ब्राजीलियन प्लेटू के आसपास लोकेटेड है ना, अमेजोन बेसिस के पास. तो एंडीज तो एक्सटेंड ही नहीं करता अमेजोन बेसिन ब्राजील तक. कोलंबिया, यस, करेक्ट. कोलंबिया इज पार्ट, राइट? देन यूक्वेडोर, यस, करेक्ट. पैराग्वा, नो. वेनेजुएला, यस. अगर हम माउंटेन रेंज की बात करें तो एंडीज माउंटेन्स बेसिकली फॉर्म द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द एंटायर वर्ल्ड. दैट इज बाय स्टडिंग इट, प्रिपेयरिंग अबाउट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ज्योग्राफी में तो आपको पढ़ना ही है ये, ठीक है? सिमिलरली इंपॉर्टेंट लेक्स इन न्यूज, लेक पैंगसो लेक तो हमेशा न्यूज में रहती है, तो आपने वो भी प्रिपेयर की होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर. कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज. 3 lakes are given, 3 water bodies are given. They are asking through how many of them does the equator pass. इसीलिए पीछे मैप्स लगे होते हैं जब हम तैयारी शुरू करते हैं. हम मैप्स को देखते रहते हैं, विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं. इक्वेटर के थ्रू कौन से माउंटेन्स, कौन से कॉन्टिनेंट्स, कौन सी कंट्रीज, कौन सी सिटीज पास कर रही हैं. यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन उठा लिया. वैसे फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट अगेन आज से 4 to 5 years ago, 4 to 5 years back, these kind of questions were asked. Again, UPSC has repeated that question. This was the level geography. I will say 65% geography was, you can say, tricky and a bit moderate. It required basic NCERT based स्टडी एज वेल. आपके एनसीईआरटी बेस्ड फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए थे ज्योग्राफी में, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, टैकल कर रहे हो. तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें ना, तो क्वेश्चंस कम थे, क्वेश्चंस वर लेस, but they were NCERT heavy questions, not PYQ heavy question. History was PYQ heavy. Geography and IR were current affair and NCERT heavy. That is why I always ask our students, NCERT को छोड़ना नहीं है. करंट अफेयर्स तो अब यूपीएससी ने प्रूफ ही कर दिया, NCERT का दामन नहीं छोड़ना, ज्योग्राफी ने प्रूफ कर दिया. ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स. इकोनॉमी और आपका साइंस, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, IR हो गया. विमल सर विल बी कवरिंग एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक. बट हमारा की टॉपिक तो बचा है पॉलिटी. लेट अस हैव अ लुक एट पॉलिटी नाउ. ऑल राइट, अब बात आती है हमारे प्यारे पॉलिटी की. पॉलिटी से वी हैड 14 क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कम थे बट पेपर वाज टफ. Now when I say paper was tough, there are many people who would say, अरे नहीं नहीं मैम, paper was very easy, बहुत easy था. Some people would say, अरे it is moderate. But I am not talking about solving the paper when we are sitting at our home. तब तो फिर moderate easy हो ही जाता है. The kind of statements which were asked this year, to quickly analyze them with all the attention and awareness, a bit tricky. It was a bit tricky. We will look at the questions also, but ओवरऑल मेरा मानना ये है कि पॉलिटी से थोड़े से टफ क्वेश्चंस इस बार आए हैं. यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है. आई एम नॉट सेइंग डायरेक्ट नहीं है. यस, देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत. अगर आपने एम लक्ष्मीकांत अच्छे से कम 3 बार अपनी जर्नी में रिवाइज की है, देन इजी भी था. सम क्वेश्चंस वर इजी आल्सो, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वर अ बिट टफ. Look at this particular question, question number 51. Consider the following statements. Panchayats at the intermediate level exist in all states. To be eligible to be a member of a panchayat at the intermediate level, person should attain age of 30 years. थोड़ा सा स्माइल आ गई है मेरे फेस पे. I'll tell you why. Chief Minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at intermediate level. ये पूरा पैराग्राफ उठाकर जो डाला है यहाँ पर, you will see that now type of question which has been asked is different. अभी क्या किया है, when you used to study M लक्ष्मीकांत और NCERT or any other standard book, या कोई भी नोट पढ़ते हो आप, अपना मटेरियल पढ़ते हो,
यू स्टडी एंड यू अंडरस्टैंड इन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमी. आप पढ़ के समझते हो, रटा नहीं जाता है. पॉलिटी, इफ यू स्टार्ट रोट लर्निंग, योर माइंड विल बर्स्ट डाउन, योर ब्रेन विल बर्स्ट, राइट? वाई? बिकॉज बहुत हैवी है. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू शॉर्टन इट. लुक एट द स्टेटमेंट्स आई टोल्ड यू ना, विच आर नॉट करेक्ट. और स्टेटमेंट भी देखो, डायरेक्ट पैराग्राफ उठाए हैं. दे हैव पिक्ड अप द पैराग्राफ्स, है ना? सो नाउ रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड, अंडरस्टैंडिंग इट एंड रिमेंबरिंग इट, वो जरूरी हो जाता है. सो दिस इज अ डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चन बाय द वे. ठीक है, डायरेक्ट ही एम लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चन है ये. नाउ आपसे पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? 1, 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट 1, वाई इज इट इनकरेक्ट? बिकॉज पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज ब्लॉक और मंडल पंचायत जो होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट. अब मैंने आपको बताया था, बिफोर वी वर प्रैक्टिसिंग, वी वर रिवाइजिंग, बिफोर द प्रीलिम्स, आई टोल्ड यू एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी आते हैं प्रीलिम्स में. ऑल, ओनली, 99% ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग. ऑल स्टेट्स पूछा है, ठीक है, गलत. यहाँ पर आर्टिकल 243 बी यूज हो सकता है, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन की लिमिट दी गई है. सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट अगेन इज इनकरेक्ट बिकॉज मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट एनी लेवल, एज एट एनी लेवल इज 21 ईयर्स. आर्टिकल 243 एफ आ जाता है यहाँ पर. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगा? यहां पर हम देखेंगे दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, इट मेक्स रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा. सो अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बट अगेन इट विल बी टफ अगर आप मिनी नोट्स की तरफ जाते हो. व्हेन यू स्टडी पॉलिटी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, मेक श्योर लक्ष्मीकांत बुक जब आप पढ़ो तो आप एक एक वर्ड को समझो, एक एक वर्ड को अपने अंदर ग्रास्प करो. आई एम नॉट सेइंग रटो, बट समझो दीज कीवर्ड्स ऑल. who is forming the commission, who is reviewing it, who is distributing the taxes, revenue, etc. ये जो pointers है ना, इसको skip नहीं करना है just because you are running after short notes. Now here ये डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाया गया है. लोकपाल 2017 में लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, लोकायुक्त, लोकपाल. अब देयर इज अ सेपरेट चैप्टर आल्सो इन एम लक्ष्मीकांत, राइट? सो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू व्हिच हैज बीन पिक्ड अप. अच्छा, एक और मुझे बात बतानी थी. अभी चेस का इंसिडेंट हुआ था, चेस ओलंपियाड हुआ था, राइट, इन 2024. मास्टर गुकेश तो काफी फेमस हुए थे उस टाइम पर. यूपीएससी ने भी नजर में रखा. सो सी, क्वेश्चन केम डायरेक्टली, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया, राइट? देन खो खो का मैच हुआ, खो खो वर्ल्ड कप हुआ. अगेन खो खो वर्ल्ड कप वही मिसलेनियस कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते. बट येस, a lot of times it has happened that UPSC has asked question on these kind of sports which have caught the attention of the entire world. Okay, then again देखो ब्रिक्स, वही मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन. इसमें तो हम बोल ही नहीं सकते, वी कांट इवन से दैट हमने तो पढ़ा नहीं. हाईलाइटेड ग्लोबल इवेंट है विच वॉज हाईलाइटेड. हर बार स्पीकर एंड राज्यसभा लोकसभा पे क्वेश्चन आते हैं. अगेन द सेम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन केम. एनईएफटी, RTGS and NEFT again favorite topic of UPSC, favorite topic है. So I remember my father used to send me to bank RTGS करने के लिए, मुझे भेजा करते थे when I was doing my CA, preparing for my CA exams. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी प्रीलिम्स में आए ना, मेरे हमेशा सही हुए हैं, बिकॉज मैंने RTGS करवाई है बैंक जाकर, NEFT में करवाती रहती हूँ, राइट? So again, these kind of questions basically, see, there were some questions which were on the harder side, trickier side. There were questions which were easy also, जो हमने खुद ने सॉल्व किए बैठकर. There were questions which were directly from the current affairs, वो भी हमने देखा, current affairs का वेटेज हाई रहा है. And there were questions directly from the PYQs, but under pressure सब कुछ टफ ही लगता है. And that is natural, that is normal. But at that time, how much awareness did you have while solving the paper? कितना आपने सेफ खेला? You should not aim to solve all the entire question paper. No, सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने अपने को. We have to play it safe. एंड एज पर द टफनेस लेवल दिस ईयर, जो मैंने टफनेस लेवल देखा इस साल के क्वेश्चन पेपर में, आई शो यू वन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो थोड़ा यूनिक पैटर्न था. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो ना कि यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन भी आया है. आई शो यू. लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड. विमल सर विल बी सॉल्विंग इट, डोंट वरी. तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3. पहले तो 2 ही स्टेटमेंट्स आते थे, बच्चे उसी में घबरा जाते थे कि मैम 2 काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कमिंग, कैसे सॉल्व करें. अब स्टेटमेंट 3 भी ऐड कर दिया. दिस वाज अ ट्रिकियर साइड. इससे क्वेश्चन पेपर और टफ हुआ है इस साल. दिस इज द न्यू पैटर्न विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर.
According to me, cut off somewhere around 85 to 87 plus or minus 5 marks आपके यहाँ पर हो सकते हैं, जा सकता है, बिकॉज सी सैट पेपर वॉज ऑल्सो टफ. सी सैट पेपर इस बार मैथ्स का पोर्शन टफ था. आई विल नॉट डिनाई दैट. ओके, सो दिस कैन बी द कट ऑफ. अगेन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट बिकम अवेयर कि हम क्या करके आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या टाइप था, और ये आपको समझना जरूरी है कि येस दिस ईयर क्वेश्चन पेपर वाज टफ. अपने आप को ऐसे बहुत सब अलग अलग ओपिनियंस देंगे अभी अपने, कि कोई बोलेगा इजी है, कोई बोलेगा अरे एवरेज था, बट coming from a teacher, take it from a teacher, it was tough this year. Okay, so now what you need to do is watch the next session by Vimal sir on environment ecology, and then there is a cutoff predictor in the description box. You can check out your cutoff. एक prediction हमने निकाली है, उसके basis पे आप अपना score देख सकते हो, where you in the cutoff category you are coming in. 2026 and 27 aspirants, take it as a yardstick to determine your next steps in your journey of UPSC. सब्जेक्ट वाइज भी हम एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी. ये तो एक एक ओवरऑल एनालिसिस था टफनेस लेवल का एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, जो आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर हाउ यूपीएससी frames questions, how UPSC thinks. But from tomorrow onwards, each and every subject will be analyzed very thoroughly. Make sure that you make the most of this session. इसको सेव कर लेना. All the best, everyone. Hello everyone, this is Vimal Singh Rathore, your teacher. I am sure आप लोगों ने अपना best effort दिया होगा prelims 2025 में. In this session, I am very excited to be discussing environment and ecology and science and technology with all of you. Before making this entire lesson, I also tried to attempt these questions by myself. And there are total 27 questions in these two subjects. I was able to get 16 right without any help. In all the other questions, that is around 9 questions, I also had to do little bit of search, some standard books, internet, etc. That means that we do not need to be 100% correct to clear UPSC prelims. My percentage would be around 60 to 63% in the environment and ecology and science and technology question. Cutoff should be around 50%, 45% of the total marks. That is somewhere around 90, 85 to 100. You can say, to be safe, 85 to 100 would be the range. Okay. So while I will be solving all the questions, all the concepts, easy, medium, difficult, and everything, you do not need to be discouraged if you are getting, uh, some questions wrong. That is absolutely fine. Everyone, the person who will be going to have rank one this year is also going to have many questions wrong. So that is not the issue. Issue is the concepts that we have studied, the topics that we have studied, how many of them we are getting correct. So any percentage, any final percentage between 50 to 60, 65 is absolutely fine. Understood? So let's start with the first question. For your easiness, I have also tagged questions subject wise and the difficulty level. I have also noted somewhere, yeah, we got around, if we say difficult, medium, and easy. Out of these 27 questions, approximately 12 were easy, 8 were medium, and 7 were difficult or hard. Okay. So even if you are leaving these 7 questions, getting 50% wrong in medium and getting all the easy right, you are going to get through. This applies for the entire paper. Okay. If we are preparing sincerely, we should not be getting easy wrong at all. And medium, 50 to 60% is absolutely fine. Okay. So having said that, let's start with one of my favorite subjects, environment and ecology and science and technology. ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं. We will enjoy the session together. Okay. Now the first question. Consider the following types of vehicles: full battery electric vehicles, hydrogen fuel vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. How many of the above are alternative? Whenever UPSC is telling about alternative fuel, alternative vehicle,
इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। ठीक है, इसके बारे में इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? तो नितिन गडकरी जी हैज बीन टॉकिंग सो मच, देयर हैज बीन सो मेनी न्यूज अबाउट ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। So all these three are absolutely correct. All answer is C. Answer is C. All these three types are alternative vehicles. Let's see how. Yes. So, as I told, what is the meaning of alternative vehicle? Any vehicle that does not use the traditional petrol diesel engine is called alternative powertrain vehicle. Many students got stuck, sir. Powertrain क्या होता है? अरे मित्रों, alternative भी तो लिखा हुआ है. Even if you are not understanding what is the meaning of powertrain, it's absolutely fine. You know the meaning of alternative. Whenever UPSC is telling about alternative vehicle, they mean that it is convinced, it is opposite, it is alternate to conventional internal combustion engine, that is petrol and diesel engine. ठीक है, जैसे टेस्ला कार है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स, नितिन गडकरी जी इसके बारे में हर स्पीच में, जो भी स्पीच उनकी ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग हुई है, लगभग हर इंटरव्यू में उन्होंने इसके बारे में बात करी है। एंड देन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, मिक्सिंग हाइड्रोजन फ्यूल एंड द बैटरीज। ठीक है, सो all these three are absolutely correct. Answer is C. Perfect. So this falls under environment and ecology and science and technology का overlap. This was also a part of current affair as well. ठीक है, this time UPSC has asked current affair questions from 2023 June, July, August, September, October as well. But that it doesn't mean that these issues were not in news in 2024. These are consistent. Many technology, defense technology has been discussed. Rare earth minerals has been discussed. Um, drones has been discussed because of the recent Operation Sindhu. तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग comprehensive पेपर आया है, touching different aspects of current affairs, conceptual subjects, easy, medium difficulty, different types of questions like direct questions, statement wise questions, assertion reasoning question. तो मेरे को तो पेपर बहुत ही अच्छा लगा ऑनेस्टली। ठीक है, नाउ अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग यू शुड हैव स्टडीड, है ना? जिन लोगों का क्वेश्चन ये अनफॉर्चुनेटली सही नहीं हो पाया, यू शुड थिंक दैट ऑपरेशन सिंदूर सच अ बिग ऑपरेशन वाज कंडक्टेड एंड मोस्टली इट वाज ड्रोन ओरिएंटेड. So we should have studied what are drones, types of aircrafts India is having. दो क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, सो लेट्स स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस आई एम टेकिंग इन मीडियम कैटेगरी। ठीक है, पढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ऑल टाइप्स, अच्छा, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। अपने आप ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं क्या? ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आंसर इज डी। देखो सिंपल समझो, देर आर ड्रोन, वन टाइप ऑफ ड्रोन आर लाइक एरोप्लेन्स, है ना, एयरक्राफ्ट की तरह होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से बड़े होते हैं इन साइज, दे नीड प्रॉपर रोड टू लैंड, है ना, टेक ऑफ। इन सब में ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होता, ये बात तो क्लियर है, ह्यूमन नहीं होता। ठीक है, बट कुछ कुछ हेलीकॉप्टर की तरह होते हैं, लाइक क्वाड कॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, जो एक जगह पे होवरिंग, ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं। बट जो इस तरह से उड़ते हैं, लैंड करते हैं, वो ऑटोमेटेड होवरिंग का नहीं कर सकते। वर्टिकल लैंडिंग भी सारे नहीं कर सकते। एंड बैटरी के अलावा ये पेट्रोल डीजल भी यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स। कुछ बड़े हैं, देन दे ऑल्सो यूज पेट्रोल एंड डीजल। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है काफी डिटेल में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको, इस सेशन को दोबारा देख सकते हो। जल्दी से कर दो, देखो बहुत सारा आप लोगों का टाइम आज, आपको रेस्ट भी करना चाहिए। तो ड्रेन दो, यूएवी जो ड्रोन्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एज आई सेड। एयरक्राफ्ट टाइप, है ना, जिसमें पायलट किसी में नहीं होता, दोनों में से किसी में नहीं होता। ठीक है, तो एक के होते हैं फिक्स्ड विंग यूएवीज, दे लुक लाइक मिनी एयरप्लेन्स। एक होता है रोटरक्राफ्ट लाइक क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, जो आपको ट्रैफिक लाइट पे या आप जब अगर कुंभ गए होगे तो कुंभ पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, दे आर मोस्ट लाइक, दिस इज लाइक एरोप्लेन, दिस इज लाइक हेलीकॉप्टर। ठीक है, सो ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग? नो, एरोप्लेन नीड रनवे टू लैंड। ठीक है, तो नहीं कर सकते। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग? नो, जो बड़े वाले होते हैं, एरोप्लेन टाइप होते हैं, वो एक जगह होवरिंग नहीं कर सकते।
कैन एन एयरप्लेन स्टे इन वन स्पॉट इन द एयर? नो, इट विल फेल। तो फिक्स्ड विंग यूएवीज जो होते हैं वो आगे या पीछे उनको मूव करना होता है, अनलाइक हेलीकॉप्टर। ठीक है। हेलीकॉप्टर मैंने क्यों बोला? बिकॉज मैंने कंपैरिजन करा था हेलीकॉप्टर का रोटर क्राफ्ट टाइप ऑफ ड्रोन से और एरोप्लेन का फिक्स्ड विंग टाइप ऑफ ड्रोन से। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज, नो, मैंने बताया आपको। ठीक है, पेट्रोल डीजल भी एज अ फ्यूल यूज होता है। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन दोबारा से। इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी एंड क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, नाइन्थ तो पढ़ी ही होगी आपने, साइंस की अपनी एनसीईआरटी, उसमें है ये। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजली मेकअप बैटरी कैथोड्स? दो नोड होते हैं, एनोड कैथोड। एनोड कैथोड। ठीक है। ये हमें बस, या बचपन में भी हमें सिखाया गया था कि कोबाल्ट, निकिल और लिथियम, दे आर ऑलवेज एनोड एंड ग्रेफाइट इज ऑलवेज कैथोड। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आंसर इज ओनली थ्री। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है सिंपल, कि कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जहां पे मेन एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन, बैटरी को पढ़ लेना। बैटरी का कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे इन दिस सेशन वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू द एक्सप्लेनेशन, दैट इज कंसेप्ट, बैटरी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत कंसेप्ट पूछे हैं यूपीएससी ने, क्लोनिंग है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आई एम पॉइंटिंग आउट द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लास 9th में डिस्कस्ड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो कैथोड में ग्रेफाइट जो होता है वो हमेशा कैथोड में होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का मीडियम क्वेश्चन, दिस कैन बी कंसिडर्ड इजी एज वेल, बट मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ताकि आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील ना करो, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन रखने की कोशिश करी है कि हार्ड या मीडियम में। इजी बिल्कुल एकदम, जो बिल्कुल ही सिंपल है वो इजी है। ठीक है, तो consider the following: cigarette butts, eyeglass lenses, and car tires. How many of them contain plastic? Answer is very surprisingly all the three. इन सब में प्लास्टिक होती है। सिगरेट बट के फिल्टर में होती है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिकम्पोज। लेंसेज में तो होती ही होती है, और कार टायर में भी प्योर रबड़ नहीं होती। प्योर रबड़ होगी तो वो हीट को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसमें भी प्लास्टिक का कंपोनेंट होता है, विच इज इट कंटेन्स प्लास्टिक पॉलीमर्स फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है। आंसर सी, ऑल द थ्री। फिफ्थ क्वेश्चन सेट बी अपन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये फिफ्थ क्वेश्चन सेट बी का फिफ्थ क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 इन सेट बी are science and technology and environment and ecology. Question number 54, 55, and 61 to 65. These are science and technology and environment and ecology. ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक और डायनेमिक का ओवरलैप है। करंट अफेयर्स हैज फॉर्म्ड अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री हैज बीन इजियर, पॉलिटी हैज बीन इजियर। बाकी अर्पिता मैम विल डिस्कस इन डिटेल विद यू ऑल द अदर सब्जेक्ट। हार्ड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से भी सीधा समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने बेसिक एक इक्वेशन होती है वो आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में है, तो थोड़ा डिफिकल्टी, इसीलिए मैंने इसको हार्ड रखा है। ये क्वेश्चन अगर आपने छोड़ भी दिया है देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथानॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, यूरिया। नाइट्रोग्लिसरीन में क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस नाइट्रिक एसिड। इथानॉल तो अल्कोहल हो ही गया, और यूरिया में अमोनिया होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कैन बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से होता क्या है? सिंगैस बनती है। क्या होती है सिंगैस? ये भी क्लास 11th में, क्लास 10th में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में डिस्कस्ड है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगैस? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ केमिकल फैक्ट्री। सिंगैस को मल्टीपल केमिकल से मिक्स करते करते हम बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज वाई इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, which means how to convert coal
Coal gasification means how to convert coal into syngas. Syngas is synthesis of hydrogen and carbon monoxide. ठीक है, तो ग्लिसरॉल से नाइट्रिक एसिड मिक्स करेंगे ड्यूरिंग सिंगेस प्रोसेस तो नाइट्रोग्लिसराइड बन जाएगा। ऐसे ही इथेनॉल, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं भी नाइट्रोग्लिसरीन में कंफ्यूज था, तो मैंने भी ये क्वेश्चन छोड़ा था। तो डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड इफ यू आर गेटिंग इट रॉन्ग और यू हैव लेफ्ट इट, आइडियली यू शुड हैव लेफ्ट इट। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। व्हाई इट इज इजी? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, है ना। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये केमिकल्स जो है, ये एक्चुअली न्यूज में थे 2000, डीआरडीओ ने ना, डीआरडीओ की एक न्यूज है 2024 की, 24 की जुलाई की, है ना। आई हैव ऑलवेज टोल्ड ऑल माय स्टूडेंट्स टू कीप ऑन चेकिंग वेबसाइट्स ऑफ इसरो, डीआरडीओ, है ना, और अपनी ये सीएसआईआर। अगर आप इवन इन 2 months यू आर चेकिंग दीज वेबसाइट्स ना, यू विल गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ सीएसआईआर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू डू नॉट नो, देन आप थोड़ा सा फोकस से और पढ़ाई करना शुरू करो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआईआर? ठीक है, बताओ। तो ये हमारा जो नेशनल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनमास के बारे में पढ़ो, बहुत अच्छी रिसर्च होती है वहां पे भी। ठीक है, थोड़ा अंडरडॉग इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली में है ना। सीएसआईआर है। जब हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम बनाया था तो आईजीआईबी इंस्टीट्यूट बहुत न्यूज में था, उसके बारे में पढ़ो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इंडिया में 15 साल हो चुके हैं। 2010 में हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम को डिकोड किया था फर्स्ट टाइम, आईजीआईबी दिल्ली में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है, तो ये हमारे जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनकी वेबसाइट 2 महीने में एक बार, पूरे साल में अगर आप केवल 5-6 बार अगर आप विजिट कर रहे हो, यू विल गेट ऑल दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल दीज टेस्ट। So all these chemicals that you are seeing here, they are explosive used in military weapons. What is the difference between explosive and fuel? Fuel do combustion slowly, gradually. They provide consistent energy. While explosive, they provide sudden influx of gases and burst. ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा फ्यूल में और एक्सप्लोजिव में। ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करी है। दिस वॉज इन न्यूज बाय डीआरडीओ। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर से भी रिलेटेड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी पीजी। ठीक है, दिस वाज इन न्यूज। मेजर है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग पता ही है, इट इज अनलाइक आर जीरो एंड बिट्स, जीरो एंड वन बिट्स, है ना। ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी फास्ट, कैन हैंडल अ लॉट ऑफ बिगर कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। बट दिस मेजर chip was not launched by Amazon Web Services. It was launched by the company of Satya Nadella, that is Microsoft. You know who was the father of Satya Nadella? He was an IAS officer. He was um, he was director of Labasna at some point of time, right? He also wanted his son to become an IAS officer. So just anecdotal story. ठीक है, सो इसका हमारा क्वेश्चन अगर हमारा टू गलत हो गया, हमें करेक्ट बताना है, नॉट इनकरेक्ट। तो टू गलत हो गया तो आंसर हमारा हो गया 1 and 3। आंसर इज सी। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। आंसर इज सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, with reference to monoclonal antibodies, my favorite question, cloning, hybridoma, melanoma, all these are my research topic that I have done back in 2010 to 12 in Delhi University. So I love talking about all these, but we will not go into detail. I have written down all these concepts that you should study, you should understand, and you should ask me if you are having any kind of doubt. I love explaining these concepts. If more than 10 people will comment to understand about these concepts, I will make a separate session about it. ठीक है, this is the part of biotechnology and recombinant DNA technology. What is the meaning of RDT, recombinant DNA technology? ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वेरी एफिशिएंट, दे आर बिल्ड बाय क्लोनिंग। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस करती हैं। They are man-made, they are made in lab, they are made with the help of genetic material derived from lymphocytes and melanoma cells. It get mixed. तो मैं अभी जल्दी से नहीं बता रहा, वरना आप लोग का और कंफ्यूज हो जाओगे। जिन लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ग्रेट एट बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी। ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। आंसर इज डी। ठीक है,
तो इजी क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा जल्दी मूव कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वायरस के बारे में हमने कई बार बात करी है। वायरस कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। इट 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 इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से ना इच्छाधारी नागिन, ठीक है ना। तो ये जिस होस्ट में होता है उसके डीएनए से कंबाइन हो जाता है। तो वायरस जब हमें इन्फेक्ट करता है और हम वायरल इन्फेक्शन में भी अगर वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग रनिंग कर, तो वायरस और तेजी से रेप्लिकेट होता है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये मैंने बताया है, आपको पता होना चाहिए। तो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एंड दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज व्हाट? बैक्टीरियोफेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं सच में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फेक एक्साइटमेंट। आई नो आप लोगों का एग्जाम हुआ है, आपकी एनर्जी में भी थोड़ी सी कम हो, बट ये समझो। एंड अगर आप लोग सफिशिएंट इंटरेस्ट दिखाओगे तो आई वुड लव टू टीच यू ऑल दीज concepts ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, environment and ecology, and all these current affairs related to all of this, because these are my favorite topics, and probably my life so far. नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन। एब्सोल्युटली रॉन्ग भाई, वायरस चेंज करता है भाई, तभी तो इन्फेक्शन होता है। वायरस कंबाइन विद आवर जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, हमारी सेल की मशीनरी यूज करता है अपने आप को बढ़ाने के लिए, राइट। तो इट डेफिनेटली इम्पैक्ट द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, तभी तो वो ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है। सो सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे, इसको हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आंसर इज डी, करेक्ट बताना है हमें। तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट, आंसर इज डी। अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बचपन से पढ़ रहे हैं। एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन हमारे टूथब्रश में आ गया, टूथपेस्ट में आ गया है, हमारे सीवेज क्लीनिंग में आ गया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्टिवेटेड कार्बन इज हैज अ पोरस स्ट्रक्चर, है ना, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इट गेट अटैच टू द impurities very very fast. So all these statement are absolutely correct. I will not go into detail. So statement 1, 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. Answer is A. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लेना, डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। इजी क्वेश्चन है तो डिटेल में नहीं जा रहा, हार्ड क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। Statement indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. Yes, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था बाय द वे, ठीक है। तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ये भी सही है। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, ये मुझे स्टेटमेंट तीनों पता थे, बट मेरा जो कंफ्यूजन था, जो आप लोगों का भी कंफ्यूजन रहा होगा, कि क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन करता है, क्या ये करता है? नो, only one of the statement of 2 and 3 correct is correct, and that explains statement 1, ठीक है। तो आंसर इज सी बी, हाँ सॉरी, ये स्टेटमेंट तीनों सही है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, हाँ यही था, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था कि स्टेटमेंट अपनी तीनों सही है, मैंने तीनों सही मार्क करे, स्टेटमेंट तीनों सही है, बट इन दोनों में से एक ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर इज बी, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ओके, तो ये डन है, एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज इजी क्वेश्चन। व्हाई इट इज इजी? सीओपी 28 हुई थी आई थिंक दिसंबर में, है ना। इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारा। ऑल दीज इवेंट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड डिफरेंट अदर कन्वेंशन, इनकी जब मीटिंग होती है उसको सीओपी बोलते हैं। तो ये सारे इवेंट हमें तो याद करने ही करने, न्यूज में आता है, हिंदू में भी आता है, हर न्यूज में आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये बाइंडिंग नहीं था तो ये इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट ओनली, आंसर बिकम्स हमारा 2, ओनली वन ऑफ दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक है, आंसर बिकम्स सी, ठीक है, परफेक्ट है। बिकॉज अब इसमें ना बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हुए हैं, जितना मेरे बच्चों से फोन पे बात हुई है, कि अब जैसे ये स्टेटमेंट है, अब इसको समझना बहुत, एग्जाम प्रेशर में, व्हेन टाइम इज ऑल्सो लेस, क्लॉक इज रनिंग आउट, है ना,
तो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। सम मैनी ऑफ द स्टूडेंट गेट दिस राइट, है ना। मैंने भी ये तीन यहाँ पे सही ले लिए थे, मैंने भी ये तीनों यहाँ पे सही मार्क कर दिए थे, बट इसमें से चूज करना दिक्कत हो जाती है कई बार जल्दबाजी में, है ना। तो हमको यहाँ पे पेशेंस रखना है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इनकरेक्ट है। दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, तो ये इसको एक्सप्लेन करता है। आंसर इज सी। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है। अगेन डिफिकल्ट इसी वजह से था कि स्टेटमेंट तो सही है, बट क्या वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and axis. Absolutely right. Solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Absolutely fine. Earth polar ice melts. The water tends to move towards the equator. Absolutely fine. But only this explains this. Only one of the statement two and three is correct. That explains statement one. ठीक है। तो मेरे से जो गलती हुई थी जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था खुद से पहली बार एकदम से, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्या इस एक्टिविटी से, इस ट्रिमेंडस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिलीज से अर्थ की रोटेशन एक्सिस पे असर पड़ता है। द आंसर इसकी नहीं पड़ता है, बट इससे पड़ता है। आइस के मेल्ट होने से पकड़ते हैं, हमारे ग्लेशियर के पिघलने से, पोलर से वो पड़ता है। तो स्टेटमेंट सारे सही है, बट केवल 3 1 को एक्सप्लेन करता है। आंसर बिकम्स सी। ठीक है। परफेक्ट। ये डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप कंफ्यूजन में हो तो। ये टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, तो यू विल गेट द पीडीएफ एज वेल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल 6, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इट वाज डिस्कस्ड इन सीओपी 28 बाय एडीबी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। दिसंबर में with reference direct, oh very beautiful, anything which is new related to environmental ecology, related to defense, new technology, वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट हो जाती है ना। करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए। व्हाट इज द यूपीएससी सिलेबस, दैट व्हाट अ वेल अवेयर वेल ग्रूम्ड citizen of India should know about their country. So latest टेक्नोलॉजी, कौन सा नया फ्यूल बनना है, कौन सी नई डिफेंस टेक्नोलॉजी, कौन सा नया एयरक्राफ्ट भेजा, वो क्या कर रहा है, ये हमारे लिए जानना वैसे भी बहुत ही जरूरी है एज अ सिटीजन ऑफ आर नेशन। ठीक है। तो ये भी बहुत, ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन था, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी के बारे में मैं काफी पहले से पढ़ रहा हूँ, बट चूंकि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ साइंस में, तो आई डोंट कंसीडर माई इजी एज योर इजी, सो आई हैव classified this as medium. All these options are correct. Direct air capture technology does not only aid in reducing carbon dioxide level, that is greenhouse effect, but also provide a sustainable source of carbon for various industrial applications, including production of synthetic fuels and materials. So this is the यूपीएससी रेलिवेंस कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन क्लाइमेट चेंज इज अ यूपीएससी रेलिवेंस। ठीक है। आंसर इज सी। पीकॉक टेरेंटुला, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज लर्निंग अबाउट द फैमिली ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की, वो क्रस्टेशियंस हैं, वो अरेक्निड्स हैं, है ना, वो किस किस कैटेगरी, उनके हर हर एनिमल की, हर प्लांट की अपनी फैमिली होती है ना। जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स है ना। फिर उसके बाद जनरली में श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप जो हमारे होते हैं, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में बायोलॉजी में अच्छे से समझाए गए हैं। ठीक है। तो वो डिफिकल्ट है याद करना। इनफैक्ट स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 11th उनको भी मुश्किल से याद होता है। तो दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट बिकॉज द ओनली रॉन्ग थिंग वाज इट इज अ arachnid, not crustacean. Now there are feature difference between the family of arachnids and crustacean that we will not go into detail into this session, but it is explained in class 11th NCERT biology. These two statements are correct. So answer is, which of the following statement correct? Statement D, 2 and 3. ठीक है। Okay. And they are also carnivorous. They are not omnivorous crustacean. They are carnivorous arachnids. This question was, I would say, easy, but I have considered this medium because थोड़ा बहुत टेक्निकल कर दिया है। टेक्निकल मतलब केवल ये डिफरेंस है, ये 0.5 टन CO2 पर कैपिटा नहीं, ये अराउंड 2 टन पर कैपिटा है, बस ये डिफरेंस है। बाकी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर इज सी। ठीक है। सिंपल। ये 2 टन है, तो इसको ये थोड़ा क्रैमिंग वाला हो गया। ये डिफिकल्ट है, इसमें ये समझना कि मिंट एंड पपाया आर नॉट श्रब्स, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पपाया काफी लोगों ने सही मार्क कर दिया होगा, बिकॉज पपाया का पेड़ हर किसी ने देखा है, बट मिंट श्रब है या नहीं है, वो आप लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैमिली
नो प्लेंटी एंड एनिमेलिया, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। हमने एनिमेलिया का एक क्वेश्चन देखा, ये बहुत टाइम बाद हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, दैट इज एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस आए हैं दोनों से। ये बहुत बहुत समय बाद ऐसा हुआ है। दैट मीन्स यूपीएससी इज टचिंग ऑल दीज फंडामेंटल्स ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आंसर इज ओनली थ्री, बी, ये दोनों गलत हैं। दे आर नॉट एनुअल और वुडी श्रब, दे आर मिंट इज पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट, जो आज की तारीख में यूपी में बहुत उगाया जा रहा है इस समय, है ना। पपाया आपको पता ही है, इट इज लार्ज हर्बेशियस प्लांट, नॉट अ वुडी श्रब। पपाया पपीता, मिंट पुदीना, ठीक है। विद रेफरेंस टू प्लेनेट अर्थ, अब ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है, दैट मीन्स कि आप यूपीएससी का पैटर्न ही नहीं समझ पा रहे। यूपीएससी हैज आस्क्ड so many times about the marine ecosystem, Amazon forest, all these rain forest, ये सब इसके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बहुत कुछ पूछा हुआ है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है क्या, ये देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, marine ecosystem and ecological productivity, comparison between terrestrial and marine ecosystem. There has been at least 5 questions in the last 10 years from this specific topic, ठीक है। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय ओशंस, नो। रेन फॉरेस्ट बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बट लगभग उतनी ही अपने रेस्पिरेशन में यूज भी कर लेते हैं। तो मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट एक्चुअली कंट्रीब्यूट, बट दे आर ह्यूज सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, एब्सोल्युटली राइट। वेल oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than in atmospheric oxygen or atmospheric air, absolutely wrong, ये नहीं है ऐसा। तो आंसर इज बी ओनली, ठीक है। तो ये मरीन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इनका कंपैरिजन ये प्लीज पढ़ो अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो। कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ो, क्लास 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है ये, ठीक है। आप लोग जो भी टॉपिक कमेंट करोगे, आई विल मेक श्योर दैट आई क्रिएट अ सेशन आउट ऑफ इट, ठीक है। आगे आते हैं मित्रों। गगन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हर किसी को पता है कि इट डज नॉट प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन, हर जगह बेनिफिट। गगन के बारे में तो मत ही पूछो, मतलब पिछले 8-10 साल से दिस टॉपिक हैज बीन कंटिन्यूसली कमिंग इन न्यूज। तो गगन तो बहुत, गगन और IRNSS, है ना, ये सारे टॉपिक पढ़ डालो। इसरो के जो भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, IRNSS, जीएसएलवी मार्क थ्री, सारे फ्यूल, क्रायोजेनिक फ्यूल, ये सब टॉपिक, मतलब ये तो ऐसे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। इसरो की वेबसाइट पे लिस्ट दे रखी है इन सब टॉपिक की। तो आंसर इज वन, विच आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज डी। रेलिवेंस क्या है, यूपीएससी लव आस्किंग डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, पूछती ही है, फेवरेट टॉपिक है। देर इज अ रीजन कि साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से हर साल 25 to 35% क्वेश्चन आए हैं सिंस 2011। देर मस्ट बी सम रीजन, बिकॉज दे आर सो रेलिवेंट। वी वन ऑपरेशन सिंदूर बिकॉज ऑफ साइंस, ठीक है। वी आर एबल टू वी आर एबल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन व्हीट, राइस एंड मिल्क बिकॉज ऑफ साइंस, राइट। तो बहुत रेलिवेंट है एक इंडिविजुअल सिटीजन के लिए, एक फार्मर के लिए, ठीक है। तो ये, इसको अपने को अंडरमाइन नहीं करना है इस टॉपिक को, ये बहुत रेलिवेंट है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोदी जी गए थे, है ना, को चेयर करी थी मीटिंग। इसका सिंपल सा आंसर है कि यूएस यूके ने साइन नहीं किया था डिक्लेरेशन। तो आंसर इज करेक्ट, ए बताना है, आंसर इज ए। सिंपल है, क्लियर है। 61, केवल 4 क्वेश्चन रह गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेयर अर्थ मिनरल के बारे में इतनी बात हो रही है, चाइना, यूक्रेन, यूएस एग्रीमेंट, रेयर अर्थ मिनरल यहां मिल रहा है, कश्मीर में मिला था अपने को, तो ये अपना लगातार न्यूज में है, तो इसके बारे में पढ़ा तो होगा ही आपने। रेयर अर्थ elements are used in the manufacturing of flat television screens, computer monitors, and in iPhone as well, ठीक है। Some rare earth elements have phosphorescent properties, absolutely correct, both statement are correct, answer is A, ठीक है। अगेन दिस इज रिसेंट टेक्नोलॉजी। कवच, अश्वनी वैष्णव जी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कवच, प्रॉपर उनकी एक रील वायरल हुई थी कवच एक्सप्लेन करते हुए। इंडिजीनियस है भाई, जर्मनी का नहीं है, और ये 2028 तक नहीं, 2030 तक है। इतने न्यूज में, PIB में, हर जगह आया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, आंसर इज ए, सिंपल। स्पेस डेक्स एंड गगनयान, ये तो अपने इंडिया के हैं,
स्पेस मिशन, है ना? मैंने क्या बोला था कि इसरो, डीआरडीओ, ये सब क्या कर रहे हैं पता होना चाहिए। सीएसआईआर, इंडेलिबल इंक जो आपकी वोटिंग के बाद लगती है, किसने बनाई थी बताओ? क्या हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं? सोचो इसके बारे में। सीएसआईआर ने और इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या बनाई हुई है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो एक्सियम, ये यूएस की एक कंपनी है, उसने उसकी रिलीज है, एंड ऑल ऑफ दीज स्पेस मिशंस दे आर एनीवेज, दे आर डूइंग माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, ठीक है? तो ऑल द थ्री आर करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सियम 4 conducted by Axiom Space. SpaceX इसरो ने कंडक्ट किया। इट इंक्लूड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट, लाइक प्लांट ग्रोथ स्टडीज। एंड गगनयान तो हमको पता ही है, ठीक है? दो क्वेश्चन अगेन, ये भी ऑपरेशन सिंदूर। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू इंडियन फोर्सेस, ऑपरेशन सिंदूर बहुत हमारा अपना इसमें यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 4 से 5 क्वेश्चंस आ गए हैं इससे रिलेटेड, ड्रोन, फ्यू, ये एक्सप्लोजिव्स, ये क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? तो इसमें ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, ऑनेस्टली ये मुझसे नहीं हो पाया था, बट आप लोगों से होना चाहिए। वाई? बिकॉज समहाउ मैं एयरक्राफ्ट और नेवल वेसल्स के नाम मेरे से मिस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे इंडियन एयरक्राफ्ट हैं, और इसमें ये गलत है। ऑब्वियसली मैंने ये क्वेश्चन पहले से देखा है, इसलिए मुझे पता है, बट फर्स्ट टाइम में मैंने ये गलत कर दिया था। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स ऑफ गिवन आर करेक्टली मैच्ड? आंसर इज ओनली 2, बी। तो IL-76 जो इन्होंने लिखा हुआ है, सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इट इज नॉट सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इट इज अ मल्टीपर्पज 4 इंजन टर्बोफैन स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर डिजाइन फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन, वेरी मच इन न्यूज। जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे तो आर्टिफिशियल रेन की बात हुई थी। अभी रिसेंटली भी आर्टिफिशियल रेन की बात चल रही थी। तो आर्टिफिशियल रेन, to reduce pollution, make use of silver iodide and potassium iodide, which forms the nuclear eye of the cloud, ठीक है? For the cloud formation, ठीक है? तो सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, आंसर इज ए। सो दैट covers everything about science and technology and environment and ecology, my friends. I know all of you have put great efforts this year. All the best to all of you. You can also scan this QR to download Super Kalam application. You will be able to solve 2025 prelims on the application, challenge your friends, and so many interesting stuff. Application is absolutely free. For the students looking for GS Foundation batches, you can just scan this, or you can ping us on this phone number. Our team will get in touch to help you explain and help you onboard on Superkala. All the best. This is Vimal Singh Rathod signing off.